Good morning, this is Anupama Labhe and we are again with our subject company law. I am saying we are again with our subject company law because we left some portion of last unit of our subject, and that's why I am here to explain the remaining portion of our syllabus. The first we will discuss the independent director. What is independent director and what is the meaning of small shareholders director, okay? So let us see, what does you mean by independent? Independent means totally different director. Totally different director means the person who is totally indifferent with the affairs of the company is a person who is called as independent director. So let us see the concept of independent director. It means a non-executive directors. Non-executive directors means the directors who are appointed in a company as a whole-time director or a part-time director, okay? He means a non-executive director of the company who, apart from receiving director's remuneration, does not have any pecuniary means financial relationships or transactions with the company. Let us first discuss this statement, okay? What does it mean? Non-executive director. He must be a non-executive director. And what he is receiving from the company, he is only getting the remuneration from the company. That means, who apart from receiving director's remuneration does not have any pecuniary relationship or transactions with the company. Pecuniary relationship, as I already told you, that means financial relationship with the company. What do you mean by financial relationship? Financial relationship means that means a person who is appointed as an independent director or any of his relatives must not in any way, directly or indirectly, connect with the company in financial matters. क्या होता है financial matters? वो हम लोग जब इसे explain करेंगे, then we will see, okay? तो relationship or transactions with the company, its promoters, its senior management or its holding subsidiary or associated companies, which in the judgment of the board may affect independence judgment of the director. So what does it say? क्या बता रहा है ये? Promoters, its management or its holding subsidiary or associate companies. And the person who is appointed as an independent director must not have any relationship with the promoter, its senior management or its holding or subsidiary company, okay, or associate companies, which in the judgment of the board. Judgment of the board means जैसे board of directors considered it will affect the decision which will be made by the independent director. देखिए, company is a legal person, बराबर है? It has its own legal identity. It is different from the persons who are running the company. ठीक है? Who runs the company? Directors runs the company. But who are the owners of the company? Shareholders are the owners of the company. कैसे कहते हैं हम लोग? They are part owners of the company. बराबर है? लेकिन ये जो persons है, ये इन्होंने खुद का इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए. इसलिए वो पर्सन कैसे होने चाहिए? वो पर्सन ऐसे होने चाहिए who do not have any financial interest in the affairs of the company. इसलिए जिसका इंटरेस्ट है वो उस तरह से डिसीजन लेता है. एंड यू ऑल ऑफ यू नो दैट क्या होता है, डायरेक्टर्स टेक द डिसीजंस. डायरेक्टर्स अगर डिसीजन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे इंटरेस्ट के फेवर में मैं डिसीजन लेने वाली हूँ. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट independent directors must be appointed by the company to carry the affairs of the company. ठीक है? तो ये जो पर्सन है तो इसके कुछ क्वालिफिकेशंस है. What are the qualifications of a person who is appointed as an independent director of a company? हमने डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन देखे थे लास्ट लेक्चर में. उसमें हमने क्या देखा था कि एज सच वैसे कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, एकेडमिक भी नहीं है, प्रोफेशनल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन किए थे. लेकिन in connection with independent directors, under the Companies Act, they have mentioned certain qualifications which
if possessed by the person can be appointed as a independent director. So let us see what are the qualifications which must be possessed by a person to become a independent director in a company. First one is who is not MD, that means managing director, whole time director or nominee director. देखो पहले ही मैंने कहा था डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, बराबर है, और डायरेक्टर्स हु आर मैनेजिंग द कंपनी और हु आर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो क्या करते हैं, थोड़ा ना थोड़ा तो भी इंटरेस्ट अपना रखते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा वॉच लाने के लिए जो डिसीजंस ले रहे हैं वो उनके ही फेवर में नहीं हो रहे हैं, ये देखने के लिए भी कंपनीज एक्ट ने बताया है कि एटलीस्ट 1/3 that is composition of the directors must be of independent director। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहते हैं वो पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं बाकी डायरेक्टर्स। कंट्रोल इन द सेंस कि देखा जाता है कि कहीं उनका कमर्शियल इंटरेस्ट तो नहीं है, और अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी अगर कोई कमर्शियल इंटरेस्ट होगा तो क्या होने वाला है, कंपनी के जो अफेयर्स है, जो ट्रांसपेरेंसी उन्होंने मेंटेन करनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होगी। That's why the person who is appointed or intended to be appointed as a independent director must not be MD, WTD, that means whole time director or nominee director of the company। ठीक है। Second one is in the opinion of the board is a person of integrity and possesses relevant expertise and experience। What does it mean? क्या होना चाहिए in the opinion of the board? देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर उसके लिए हाँ बोला है देन ओनली दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखते हैं वो पर्सन में, वो पर्सन में ये देखा जाता है कि ही पोजेसेस रिलेवेंट एक्सपर्टाइज। क्या है एक्सपर्टाइज, क्या है, व्हाई वी अपॉइंट द डायरेक्टर फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी और फॉर टेकिंग मोर correct decisions or the decisions which are beneficial for the growth or development of the company, ये देखा जाता है। and if he does not have that much expertise or experience he cannot be appointed as an independent director। तो इंटीग्रिटी भी देखी जाती है, whether he has integrity and possesses relevant expertise or experience, ठीक है। Next one is who is or was not a promoter or director in a company, its holding, subsidiary or associate company। देखिए वो कैसा होना चाहिए, he must not be a promoter of a company। वो promoter नहीं होना चाहिए, ना तो ये कंपनी का, ना तो उसकी कोई अगर होल्डिंग कंपनी होगी उसका, ना तो कोई सब्सिडरी कंपनी का, ना ही कोई एसोसिएट कंपनी का। क्या नहीं होना चाहिए, ना तो प्रमोटर होना चाहिए, ना तो डायरेक्टर होना चाहिए। इफ that person happens to be a director of an associate company or a holding or a subsidiary company, then he is disqualified to be appointed as an independent director। समझ में आया? तो क्या होना चाहिए, वो किसी भी सेंस में कंपनी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए, या KMP, that means key managerial personnel नहीं होना चाहिए, then only he can be appointed as an independent director। Next, who has or had no pecuniary relationship with company within 2 immediately financial year or the current year। क्या है, फाइनेंशियल उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ देयर इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी, मेरा समझ लीजिए वहाँ पे इंटरेस्ट है और वो कंपनी को मैंने कुछ समझ लीजिए लोन दिया हुआ है, लोन दिया है तो भी मेरा ये है कि वो कंपनी ने मेरा लोन जो है रिपे करना चाहिए, इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे फायदे के लिए वो कंपनी का प्रॉफिट अननेसेसरीली मैं क्या है प्रॉफिट बढ़ा दूंगी, या तो कुछ ऐसे डिसीजंस लूंगी जिससे कि मेरा लोन जो है वो रिपे हो जाए, या फिर ऐसा है कि मेरी कोई कंपनी है और उसका कुछ उसके जो प्रोडक्ट्स है मैं ये कंपनी को बेचना चाहती हूँ, तो डिसीजंस क्या लिया जाएगा कि ये कंपनी ने सिर्फ यही कंपनी से प्रोडक्ट्स को परचेस करना है। समझ में आया है? तो ऐसा कोई फाइनेंशियल मैटर या इंटरेस्ट इस पर्सन का वो कंपनी के साथ में नहीं होना चाहिए, ना तो इस साल ना ही इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 years, ठीक है। हाँ, लेकिन 2 साल के पहले अगर उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट था और अब नहीं है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या बताई है, इमीडिएटली 2 years प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और द करंट ईयर। देन
नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, अभी देखिए ये तो है ही, ये पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी, वो तो छोड़ ही दीजिए, उसके रिलेटिव्स भी, उनका भी किसी भी तरह से कंपनी के साथ में फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए कहा है 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यानी ही इज रिसीविंग 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी। यानी क्या है कि उसका जो 2% है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ही इज गेटिंग फ्रॉम द कंपनी, देन इट इज डिसाइडेड दैट ही हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। या तो उन्होंने कहा है और ₹50 lakhs 50 lakhs और such higher amount as may be prescribed, ठीक है, whichever is lower, एक तो 2% of gross turnover, या तो 50 lakhs या तो 50 lakhs या उससे ज़्यादा अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब होगा वो, ये 2% और ये जो अमाउंट है उसमें से जो लोअर होगा उस वहाँ तक के इसका कोई भी ड्यूरिंग टू इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड द करंट ईयर, इनका कोई रिलेशन कंपनी के साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या 50 lakhs रुपीस या अमाउंट प्रिस्क्राइब रहती है, अभी 50 lakhs बताया, हो सकता है ये 1 करोड़ भी हो जाए, ठीक है। तो जो भी अमाउंट उन्होंने प्रिस्क्राइब की होगी उसमें से जो भी कम होगा और ये उन्हें किसी भी तरह से कंपनी से मिलता होगा तो ये कहा जाता है कि दैट पर्सन इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन अ कंपनी। समझ में आया है? तो ऐसे पर्सन, वो खुद पर्सन या तो उसके कोई रिलेटिव्स, वो भी अगर इस तरह से इंटरेस्टेड होंगे तो भी वो पर्सन को एज अ डायरेक्टर करके, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके वो कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। देखिए जैसे मैं हूँ, मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है एक पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है, लेकिन मेरे रिलेटिव्स, उनका उस कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो मैं क्या हो जाती हूँ, वो कंपनी में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाती हूँ, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मेरे रिलेटिव्स का होने की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाती हूँ। अभी स्कैम्स जो सामने आ रहे हैं ना हमारे साथ, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्पाउस आर इंटरेस्टेड या तो उनके जो बच्चे हैं दे आर इंटरेस्टेड, लेकिन इसको कर दिया गया था अपॉइंट एज अ डायरेक्टर या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके उसे अपॉइंट कर दिया गया था, और फिर स्कैम जब ओपन हो जाते हैं और ये उनके रिलेटिव्स है ये जब पता चल जाते हैं, देन द पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड दैट पर्टिकुलर ऑफिस, ठीक है। ये तो हो ही जाता है, डिस्क्वालीफाई तो हो ही जाते हैं, ऊपर से उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। समझ में आया है? इसलिए दीज आर द बेसिक पॉइंट्स which must be considered by the board of directors while appointing an independent director। क्लियर है? और फिर क्या है, ये तो है कि फाइनेंशियल मैटर्स तो मैटर करता ही है, साथ ही साथ और क्या मैटर करता है, he must not be possessing 2% or more of the voting rights in a company। उसके पास 2% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, उसके इंडिविजुअली भी या विथ रिलेटिव्स, यानी उसके जो रिलेटिव्स है उसके और इसके टुगेदर भी 2% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स कंपनी में नहीं होने चाहिए, देन ओनली ही कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दीज आर द क्वालिफिकेशंस व्हिच आर मेंशन्ड अंडर द एक्ट to decide whether a person can be appointed as an independent director or cannot be appointed as an independent director। Clear है? Now let us see what is small shareholders director। क्या है small shareholders? मैंने आपको पहले ही बताया था, small shareholders means who are holding 20,000, यानी नॉमिनल वैल्यू जो होती है 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे शेयर्स उन्होंने होल्ड किए हुए हैं तो दैट पर्सन्स आर कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में जनरली कम होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो उनका भी लगता है कि अपना कोई डायरेक्टर वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए होना चाहिए। तो कुछ रूल्स बताए हुए हैं MCA ने कि कहाँ पे आपको ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। तो लेट अस सी कि क्या है, कहाँ पे हम लोग ऐसे एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अ लिस्टेड कंपनी, देखिए नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है,
क्यों नहीं है नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए? क्योंकि जो भी बताया जाता है एमसीए के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लिस्टेड कंपनियों के ऊपर होता है, बिकॉज लिस्टेड कंपनीज में आप स्टॉक एक्सचेंज पे इजीली वो शेयर्स परचेज या सेल कर सकते हो, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, मे हैव वन डायरेक्टर। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 1/3 ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे कितना बता रही हूँ, वन डायरेक्टर। Elected by such small shareholder in such manner and with such terms and conditions as may be prescribed। यानी ये जो small shareholders है, they have a right to appoint one director as their director in a company, but they have to follow certain provisions which are mentioned by MCA, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जो खुद होके ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, देन देयर इज नो नीड टू फॉलो सच प्रोविजंस। देखिए उन्होंने खुद ने होके ही शुरू किया है, उन्होंने खुद ने होके ही ऐसे पर्सन को डायरेक्टर करके अपॉइंट कर लिया है कंपनी ने, देन देयर इज नो नीड टू अगेन अपॉइंट अ डायरेक्टर एंड फॉलो दिस प्रोविजंस। सो लेट अस सी। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है स्मॉल शेयर होल्डर्स। होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000। कितना बताया है, उन्होंने होल्ड की है शेयर्स, लेकिन उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉट मोर देन 20,000 और अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। All of you know that Companies Act always get amended according to the situations, बराबर है। अगर सिचुएशन डिमांड करती है कि उसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए तो कंपनी लॉ तुरंत उसे अडॉप्ट कर लेती है। इसलिए अभी तो उन्हें लग रहा है कि 20,000, लेकिन हो सकता है उसके बाद उन्हें ये ज़्यादा भी करना लग सकता है या कम भी। इसलिए it always use word such other sum as may be prescribed, ठीक है। अभी तो 20,000 है, या तो वो भी हो सकती है that is prescribed from time to time, ठीक है। So rules notified by the MCA have prescribed that a company may upon receiving the notice from shareholders, small shareholders, देखिए यहाँ पे कब आपको ये अपॉइंट करना है वन डायरेक्टर, वो तब आपको अपॉइंट करना है when not less than 1,000 shareholders। ऐसे जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कितने कम से कम होने चाहिए, नॉट लेस देन 1,000 सच शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। अगर 1/10 ऑफ सच टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी अप्लाई करते हैं, या तो नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर अप्लाई करते हैं फॉर अपॉइंटिंग देयर डायरेक्टर इन अ कंपनी, देन द कंपनी हैज टू अपॉइंट वन डायरेक्टर हु रिप्रेजेंट्स द स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है। अब अदर प्रोविजंस क्या है, या तो हो गया है कि ऐसे जब नोटिस मिलती है कंपनी को ऐसे शेयर होल्डर से, then they appoint the small shareholder, but certain provisions must be followed। क्या है नोटिस ऑफ इंटेंशन? कंपनी को खुद थोड़ी ना समझ में आता है कि शेयर होल्डर्स आर इंटेंडिंग टू अपॉइंट देयर डायरेक्टर, इसलिए क्या जरूरी होता है, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है दे मस्ट सर्व अ नोटिस बिफोर 14 days ऑफ कंपनी मीटिंग। उन्हें क्या सर्व करनी है, कंपनी को एक नोटिस देनी है, उसमें उन्हें मेंशन करना है द नेम ऑफ अ पर्सन whom they are intending to appoint as a director। उन्हें ये बताना है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, और ये जो शेयर होल्डर्स है उन्हें भी बताना है द क्वांटिटी एंड द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग। ये उनको वहाँ पे एक बताना है, ये जिस पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं उसके बारे में भी बताना है, और फिर ये नोटिस उनकी कंपनी के पास कब पहुंचनी चाहिए, एटलीस्ट बिफोर 14 days ऑफ द मीटिंग, ठीक है। एंड स्टेटमेंट विथ नोटिस, ये नोटिस के साथ व्हाट दे हैव टू फाइल विद द कंपनी, दे हैव टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ DI, दैट मीन्स द पर्सन जिसे वो डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं उसका डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 a director
That means a person who has DIN can only be appointed as a director in a company. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो भी उसके पास क्या होना चाहिए, जरूरी है DI. स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है, उसे भी अपॉइंट करना चाहते हो तो भी उसके पास क्या होना जरूरी है, DI. क्वालिफिकेशन शेयर्स का होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन DIN का होना कंपलसरी है. एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड, उन्हें ये भी बताना है कि ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी. फिर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, और उस पर्सन की जिसे वो अपना डायरेक्टर करके अपॉइंट करना चाहते हैं उसकी कंसेंट राइटिंग में उन्हें लेनी है. एंड दैट कंसेंट मस्ट बी सर्व विद नोटिस टू द कंपनी. समझ में आया? ये स्टेटमेंट बनाना है और ये कंपनी को नोटिस के साथ में इन स्मॉल शेयर होल्डर्स को भेजना है. देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए, ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए मैंने आपको पहले क्वालिफिकेशंस बताया. इफ दैट पर्सन इज possessing दिस क्वालिफिकेशन देन ओनली ही कैन रिप्रेजेंट द स्मॉल शेयर होल्डर्स. देन क्या है, कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट. जैसे उसे अपॉइंट किया जाता है, आपको मालूम है जैसे कि 2/3 जो डायरेक्टर्स है उसमें के 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर्ड बाय रोटेशन होते हैं, बराबर है. लेकिन द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स नीड नॉट बी रिटायर्ड बाय रोटेशन. उसके लिए रोटेशन से रिटायरमेंट होने की प्रोविजन लागू नहीं होती है. देन टेन्योर शैल नॉट एक्सीड 3 consecutive years. उसके अपॉइंटमेंट के 3 साल तक के ही his appointment is valid. 3 साल के बाद you cannot reappoint that person as a small shareholders director. यानी ये क्या है, एक तो रिटायर्ड बाय रोटेशन नहीं होता है, यानी हर साल उसे रिटायर्ड होने की और रिपॉइंट होने की जरूरत नहीं है. He can act as a small shareholders director for 3 consecutive years. जैसे ही 3 साल खत्म हो जाते हैं he cannot be reappointed as small shareholders director. और फिर क्या है, नो डिस्क्वालिफिकेशन. मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी भी एक्ट के अंदर he cannot be declared as disqualified to act as a director. एंड वैकेशन ऑफ ऑफिस, अगर उसने ऑफिस को वैकेट किया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज डिस्क्वालिफिकेशन he cannot be appointed in any company as a director. समझ में आया है? एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज को कितने साल के लिए कितने कंपनियों में एज अ डायरेक्टर करके काम कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2 कंपनीज. समझ में आया? तो ये पूरा क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज वुमेन डायरेक्टर एंड व्हाट इज रेसिडेंट डायरेक्टर. ओके, थैंक यू.